آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشید۔ میں ہوں زشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کے جلسے کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دی جائے۔ سرگودا میں جلسے سے خطاب کے دوران مریم نواز برس پڑیں۔ شرکاء سے سوال کیا کہ حکومت میں رہنا چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے۔ عمران خان کی تباہی کا ٹوکرا اپنے سر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی حکومت گرا کر اس کا 12 سالہ منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ مریم نواز نے عمران خان کو فتنہ، ازل کا جھوٹا اور جھوٹا خان قرار دے دیا۔ کہا عمران خان کو جس نے دودھ پلایا اس نے اسی کو ڈس لیا۔ سپریم کورٹ پر زور دیا کہ فورن فنڈنگ کیس دبائے رکھنے، بشیر میمن اور شہزاد اکبر کے معاملے پر بھی از خود نوٹس لے۔ عدالت عظمی ایک پاگل شخص کے لیے ترازو کو جھکنے نہ دے۔ عمران نیازی سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ عوامی عدالت کے کٹہرے میں قوم کے مجرم عمران نیازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ عمران نیازی تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، میں عوام کے دکھوں کا مداوع کروں گا، روک سکتے ہو تو روک لو۔ سرگودا میں جلسے سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا خطاب، کہا ادویات کے ڈاکے میں اربوں کمانے والے عامر کیانی کو اہم پارٹی عہدہ دیا گیا۔ عمران خان فتنہ ہے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ عمران خان کہتا ہے میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ ریکارڈنگ کہاں چھپائی ہے؟ ایک امریکہ اور ایک گولڈ سمتھ کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا عمران خان کی گفتگو پر آپ نے سو موٹو نوٹس لے لیا، پھر آپ حکومت کریں، آپ ایگزیکٹو چیف بن جائیں۔ عدلیہ کا اپنا اور ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اہل اور یہ ذہنی بیمار، وہاں پر ایک فتنہ بھی، اب کا بیانیہ بھی کیا، سپہ سالار کا بیانیہ بھی کیا، اب کہتے ہیں میرے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے۔ آج کل کی دنیا میں کیسٹ ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، رکھی کدھر ہے وہ؟ کہاں چھپائی ہے تم نے وہ ریکارڈ؟ 2 کاپیاں ہیں، ایک امریکہ میں اور ایک گولڈ سمتھ کے گھر میں برطانیہ میں۔ بڑے احترام کے ساتھ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں اپنی عدالت عظمیٰ سے، محترم عدالت سے، فاضل ججز سے، جب چیف ایگزیکٹو نے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے کے افسر کو یا افسروں کو تبدیل کیا تو آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ آپ نے سو موٹو لے لیا۔ پھر آپ آئے نا، پھر آپ حکومت کریں، پھر آپ ایگزیکٹو چیف بن جائیں۔ عدلیہ کا اپنا کام، ایگزیکٹو کا اپنا کام۔ لندن میں نواز شریف سے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 14 ماہ ہیں تو ہم ملک کے لیے کوشش بھی کریں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم کسی کا گند اپنے سر کیوں لیں؟ اگر بد زبان کی بات مانی جائے گی تو ادارے کیسے فیصلے کریں گے؟ اسحاق ڈار کو معیشت سنبھالنے کے لیے پاکستان جانا چاہیے۔ اسحاق ڈار کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا غیر آئینی ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس تقریباً 14 ماہ کی آئینی مدت موجود ہے، لیکن 14 ماہ ہوں گے تو ہم کوئی پرفارم کریں گے نا، اور اگر ہیں ہی ہمارے پاس 2-3 ماہ تو پھر اس صورت میں پرفارمنس کیا کر کے دی جا سکتی ہے؟ جو تباہی عمران خان مچا گیا ہے اور جس طرح سے بیرونی قرضوں کا بوجھ لاد گیا ہے، اور جو ڈالر ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا جب ہم نے چھوڑا تھا، اور جی ڈی پی کہاں سے کہاں گر گیا جا کے، ان تمام چیزوں کی مینجمنٹ کے لیے وقت چاہیے، اور اس میں 12-14 ماہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، یہ بھی کم ہے، اصل میں تو پوری ٹرم چاہیے۔ تو پی ایم ایل این کی قیادت اور ہمارے جو الائیز ہیں، ہمارے پارٹنرز ہیں، ہم اس بات کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو کامبیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے یا اپنی آئینی مدت پوری کی جائے؟ غالب رائے یہ ہے کہ اپنی آئینی مدت کو پورا کیا جائے۔ آئی ایم ایف کو انگیج تو کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی اکنامک سچویشن بہت بری ہے اس میں۔ اب ایک لاڈلے کو نوازنے کے لیے یا اس کی بد زبانی سے خوفزدہ ہو کے یا اس کے بے لگام ہونے سے ڈر کے فیصلے اگر کیے جائیں گے اور جو پالیسی میکر ہیں ان پہ اس کی بد زبانی اثر کرے گی، یا حکومت کو کام کرنے سے روکا جائے گا، یا حکومت کے ہاتھ جکڑے جائیں گے، یا حکومت کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ حکومت کیسے چلائی جائے گی پھر؟ آئی ایس پی آر نے قائم مقام وزیر اعظم کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی۔ چیف ایڈیٹر 24 ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری سے گفتگو میں آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم نے نہ کسی کا انٹرویو کیا، نہ حافظ شیخ سے رابطہ کیا ہے۔ قائم مقام وزیر اعظم ہم نے نہیں بنانا۔ قائم مقام وزیر اعظم اگر بنے گا تو آئینی طریقہ کار سے بنے گا۔
पाक फौज के नाम से जाली अकाउंट्स चलाने वाले पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक, मेजर जनरल असगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक निकले। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के जाली अकाउंट से खास सियासी बयानिया बनाया जा रहा था। तासुर दिया जा रहा था कि फौज के अंदर किसी एक खास जमात की हिमायत की जा रही है। PTA ने दोनों जाली अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। उन्होंने कौमी हुकूमत के लिए चौधरी शुजात का साथ देने पर तशक्कुर का इजहार किया। आसिफ जरदारी का कहना था कि आप हमारे बहुत अहम इत्तेहादी हैं, आइंदा भी आपसे मुशावरत जारी रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। उन्होंने कौमी हुकूमत के लिए चौधरी शुजात के साथ देने पर तशक्कुर का इजहार किया। आसिफ जरदारी का कहना था कि आप हमारे बहुत अहम इत्तेहादी हैं और आइंदा भी आपसे मुशावरत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत पर वजीर कानून का मौक़िफ़ आ गया है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मियां मजहर से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी मुकदमे की तफ्तीश ख़त्म नहीं की गई, कोई हाई प्रोफाइल केस वापस लिया गया न लिया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एग्जैजरेशंस होती हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जलसों में की जा रही हैं। जाहिर है उनकी बुनियाद के ऊपर तो कोई परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता। जो प्रोसिक्यूटर की तब्दीली का मामला था वो मैं ये वजाहत से अर्ज कर दूं कि वो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हो रही थी और उन्हीं अयाम में जो पिछली हुकूमत के मुकर्रर करदा DGFIA थे अब्बासी साहब, उन्होंने वो तब्दीली की थी और की इसलिए थी कि उस वक्त की हुकूमत खुद कन्फ्यूज थी कि उन्होंने 4 प्रोसिक्यूटर्स बदले और उसमें उन्होंने लाहौर बार के सिटिंग सदर को भी प्रोसिक्यूटर बनाया जो कि नॉर्मली नहीं होता। और भी इस तरह के बहुत सारे मामला थे और जिस शख्स को बाद में उन्होंने नाम प्रपोज करके बनाया वो कोई गैर सियासी आदमी है, उसका किसी चेंबर से ताल्लुक नहीं है। वो ये FIA रिलेटेड केसेस में उनका अच्छा नाम है लाहौर में, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है। बाकी जो बातें पूछी गई हैं, कोई मुकदमा जो है उसकी तफ्तीश जो है वो ख़त्म नहीं की गई, कोई विड्रॉ नहीं किया गया, ना को किया जा रहा है हाई प्रोफाइल केस। हुकूमत ने मौशी प्लान का ऐलान कर दिया। लग्जरी एशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इंपोर्टेड गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन, मेकअप के सामान, फ़िश, फ्रोज़न फूड्स, गोश्त, जैम्स, जेली, जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट पर पाबंदी लगा दी गई। क्रॉकरी, फर्नीचर, लेदर, शैम्पू, ड्राई फ्रूट्स, म्यूज़िकल आलात, फानूस, कालीन, लाइटिंग एसेसरीज़, कालीन और टिशू पेपर समेत कई पुरतायुश अशिया मंगवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि लग्जरी एशिया की दरामद पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाई गई। इससे सालाना $6 अरब की बचत होगी। इमरान हुकूमत और IMF मुआहदे की वजह से महंगाई हुई। 4 हफ्ते की हुकूमत से सवाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लग्जरी एशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इंपोर्टेड गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन, मेकअप के सामान, फ़िश, फ्रोज़न फूड्स, गोश्त, जैम, जेली, जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्रॉकरी, फर्नीचर, लेदर, शैम्पू, ड्राई फ्रूट्स, म्यूज़िकल आलात, फानूस, कालीन, लाइटिंग एसेसरीज़, टिशू पेपर समेत पुरतायुश अशिया मंगवाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। हुकूमत ने बढ़ते हुए तिजारती खसारे को रोकने के लिए 38 से 40 ऐसी अशिया हैं जिनकी दरामद के ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। और इन अशिया के मुताबिक जो महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी दरामद के ऊपर पाबंदी होगी, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पाबंदी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो महंगी दरामदात की जा रही है उनके ऊपर पाबंदी होगी, सिरेमिक्स का जो सामान है उनके ऊपर भी पाबंदी होगी, कारपेट्स जो कि अफगानिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से आ रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, अफगानिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से आने वाले उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ऐसी जो मेकअप का सामान है, कॉस्मेटिक्स हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी होगी। टिश्यू पेपर्स जो दरामद किए जाते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। और मुख्तलिफ लग्जरी अशिया हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ख़ासतौर पर जो सैलून का सामान है उसमें ड्रायर हैं, हीटर्स हैं, ब्लोअर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सामान है उनके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। हुकूमत का यह ख्याल है कि इन 38 से 40 अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगाने से माहाना तकरीबन 45 से लेकर $50 करोड़ की हुकूमत को जो है वो बचत हो सकती है और इससे महंगाई कंट्रोल होगी और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी मुस्तहकम होंगे।
वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स की दरामद पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियों, तज़ीनो आराइश की अशिया समेत मुख्तलिफ फूड आइटम्स और असलहे की दरामद पर पाबंदी आयद की कर दी है। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से क्या मईशत बेहतर हो पाएगी, इस पर अवामी राय क्या है, जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। ने बिगड़ती मुल्की मईशत सूरत हाल को सहारा देने के लिए गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की जानिब से मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, इसी के साथ साथ तज़ीनो और आइश की अशिया, असलहा और जो क्रॉकरी है और डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनकी दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो मेकअप है या ज्वेलरी और जूतों की दरामद पर पाबंदी आयद की गई है, तो इससे क्या इकॉनमी बेहतर होगी और क्या वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ हैं हम लोग। इससे जो है हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तो हुकूमत का ये डिसीजन बहुत अच्छा है। इससे जो पुअर पीपल है उनका बड़ा फ़ायदा है, तो हुकूमत के इस फैसले के हम बिल्कुल साथ हैं। थैंक यू। जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत ने आज जो फैसला लिया है ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है और हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम किया गया है मईशत को बेहतर करने के लिए। इससे ना सिर्फ रोज़गार को फ़रोग मिलेगा बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट अप। बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी दाग दी। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 200 रुपये पर जा पहुंचा। इसकी कदर में 1 रुपये 61 पैसे इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ और 201 रुपये में फ़रोख्त किया गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि बैरूनी अदायगियों की वजह से डॉलर की मांग मुसलसल बढ़ रही है और रुपये की कदर गैर मुस्तहकम है। नाजुक मौशी सूरत हाल पर कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। शहर कायद के तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में भी शिरकत करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नई हुकूमत पर एतमाद के असरात सामने आने लगे। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार संभालने के बाद करंट अकाउंट खसारे में वाज़े कमी आई। मार्च के मुकाबले अप्रैल में करंट अकाउंट खसारे में 39.20 करोड़ डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा कम होकर 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गया। मार्च में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 1 करोड़ 50 लाख डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 77 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल में तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा कम होने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास। ग्रेड 21 के मजीद 16 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 7, पाकिस्तान ऑडिट के 2, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 5 और पोस्टल ग्रुप के 2 अफसर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन आफ्ताब अहमद पठान, IG पंजाब डॉक्टर सरदार अली खान, IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जह अंसारी, IG बलोचिस्तान मोहसिन हसन भट्ट को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई है। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन खान, तकरीर के मुंतजिर महमूद आलिम खान महसूद और एडिशनल IG पंजाब अली आमिर मलिक की भी ग्रेड 22 में तरक्की हो गई है। पाकिस्तान ऑडिट ग्रुप के तरक्की पाने वाले अफसरान में डॉक्टर इरम अंजुम, मकबूल अहमद गोंदल शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ताहा हुसैन बुक्टी, सैयद हसनैन मेहदी, वकार अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पार्लिमानी उमूर मोहम्मद शकील मलिक और एडिशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न मिर्ज़ा नसीरुद्दीन महमूद अहमद की भी ग्रेड 22 में तरक्की कर दी गई है। पोस्टल ग्रुप के अरशद अली खान और मिस खालिदा गुलनार भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ 31 अफसरान को तरक्की देने की मंजूरी दी थी। इस तरह मजमूई तौर पर तरक्की पाने वाले अफसरान की तादाद 47 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्टिलरी स्कूल नौशहरा का दौरा किया। आर्मी चीफ का इस्तकबाल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने किया। आर्मी चीफ ने आर्टिलरी रेजिमेंट में सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आर्मी चीफ ने मैदान जंग की तरबियत के लिए बनाए गए गेमिंग अरीना का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्टिलरी स्कूलों का दौरा किया। उन्हें नए तरबियती मॉड्यूल्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तरबियती पेशा वाराना महारतों को निखारने पर जोर दिया।